السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نازک دور گزر کیوں نہیں جاتا، بلکہ ماہرین کا تو یہ کہنا ہے کہ جو موجودہ دور ہے یہ بدترین یا مشکل ترین دور ہے۔ عوام کو شدید معاشی مسائل کا سامنا ہے، صرف معاشی مسائل کا نہیں بلکہ جو سیاسی استحکام موجود نہیں ہے، اس باعث عوام میں ذہنی تناؤ ہے اور ذہنی مشکلات کا شکار ہیں، مسائل جنم لے رہے ہیں۔ امید کی کرن نظر آتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، لیکن پھر تھوڑے ہی عرصے بعد جو معاملات ہیں وہ مزید بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر ہیں اور پاکستان کی معیشت کے لیے کتنا سود مند ثابت ہوں گے اس پر ضرور بات کریں گے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان 27 MOUs پر دستخط ہوئے ہیں، جبکہ آرمی چیف سے بھی سعودی وزیر سرمایہ کاری نے ملاقات کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سعودی عرب معاشی استحکام میں پاکستان کا مددگار ثابت ہو سکے گا؟ آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے۔ حکومت اور PTI کے درمیان بحث جاری ہے، جبکہ بلاول بھٹو کا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ 25 اکتوبر تک آئینی ترمیم نہ ہی ضروری ہے اور نہ ہی مجبوری ہے، جبکہ آئینی ترمیم پر حقائق کیا ہیں، معاملہ آخر کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ مخصوص نشستیں کس کا نصیب بنیں گی؟ وزیر اعظم صاحب نے آج ایک بڑا اعلان کر دیا۔ انہوں نے 5 IPPs معاہدے کی منسوخی کی خوشخبری سنا دی ہے عوام کو، اور بڑے ریلیف کی بھی خوشخبری سنائی ہے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دوسری جانب اسلام آباد میں SCO کانفرنس کی تیاریاں جاری ہیں اور اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ آج کے پوائنٹرز ہیں جن پر ہم بات کریں گے، اور میرے ساتھ جو میرے پینلسٹ موجود ہیں میں ان کا بھی آپ کو تعارف کروا دوں۔ فاروق ڈاڈی صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اکثر ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ طاہر مسعود صاحب تجزیہ کار ہیں، یہ بھی ہمیں جلد ہی جوائن کر لیں گے، جبکہ میاں زاہد حسین صاحب ماہر معاشیات ہیں اور یہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ فاروق ڈاڈی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں۔ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا کہ نازک دور ہے، نازک دور ہے، اسی لیے میں نے انٹرو میں بھی یہی بولا۔ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے یہ جملہ سننا ہر وقت کا، مطلب کب ہمیں ریلیف ملے گا، عوام کو کب ریلیف ملے گا؟ وفد آتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے دیکھا دوسرے ممالک کے بھی وفود نے پاکستان کا دورہ کیا اور یہی ہمیں کہا گیا کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے بڑی خوشخبریاں ملیں گی۔ اسحاق ڈار صاحب کے بھی یہ الفاظ تھے۔ کیا اب امید کچھ بر آئے گی؟ دیکھیے، نازک دور کی آپ نے بات کی۔ جب ہم نازک تھے بچپن میں تب سے ہی یہ سنتے ہیں کہ بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں، بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ جب ڈالر 4 روپے 70 روپے پیسے کا تھا، اس وقت بھی ہم نازک دور سے گزر رہے تھے، اور آج 280 روپے کا تب بھی ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں چاہے جمہوریت ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ہم ہمیشہ نازک دور سے ہی گزرتے ہیں۔ خیر بہرحال یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ سعودی وفد نے 27 MOU کے اوپر سائن کیے، اور اگر وہ واقعی یا سرمایہ کاری کرے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا بریک تھرو ہوگا۔ اچھا، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ PDM-1 اور PDM-2 کی گورنمنٹوں میں ایک ٹھیلے کی کہیں سے انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ پہلے بھی یہ کہا جا رہا تھا، 1 سال پہلے جب سعودی وقت آ رہا تھا یہاں پہ، کہہ رہے تھے کہ بڑا سرمایہ آئے گا، بلین آف ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی اور پتہ نہیں کتنے MOUs پہ سائن ہو۔ تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ از اے ڈفرنٹ تھنگ، ٹھیک ہے، اینڈ انویسٹمنٹ is actual thing is investment۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ماہر معاشیات میاں زاہد حسین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ السلام علیکم میاں زاہد حسین صاحب۔ وعلیکم السلام۔ زاہد حسین صاحب، آپ کے سامنے بھی ساری سچویشن ہے، صورتحال کبھی بہتری کی طرف لگتی ہے، کبھی مہنگائی کم ہوتی نظر آتی ہے، کبھی مہنگائی پھر اپنے ڈگر پہ چل پڑتی ہے۔ تو اب یہ جو اس طرح کے وفود کی آمد کا سلسلہ پاکستان میں شروع ہوا ہے، کیا بہتری کی امید کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ دیکھیں، یہ ڈیلیگیشن سعودی جو آج آیا ہے، اس سے پہلے بھی 3 دفعہ آ چکا ہے، جس کو 1 دفعہ لیڈ کیا تھا ان کے ولی عہد نے، اور اس
वक्त भी 10 अरब डॉलर की बात हुई थी जब खान साहब का दौर था, उसके बाद फिर दोबारा शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी आए थे और उस वक्त भी यही बातें हुई थी। और अब ये जो आया है तो ये असल में उसी की एक कड़ी है और उसी में मैं ये समझता हूँ कि आज जो 27 या 25 MOU साइन हुए हैं और उसमें 2 अरब डॉलर दे और 2 अरब डॉलर की उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लेज की है। और इसमें एक अब बात यह है जो डिफरेंट है पहले डेलीगेशन से कि वो थे सिर्फ गवर्नमेंट लेवल, अब आज जो है ये इनके साथ 100 बिजनेसमैन भी आए हैं और ये बिजनेस टू बिजनेस इन्होंने MOU साइन किए हैं, यानी कंपनी से कंपनी इन्होंने साइन किए हैं। और फिर ये कि इसमें जो सऊदी क्राउन प्रिंस ने जो बात की थी इसमें 10 अरब डॉलर की बात हुई, 5 अरब डॉलर की बात हुई, तो ये उसी की सिलसिले की कड़ी है 5 अरब डॉलर वाली। यानी यूं कह सकते हैं कि ये दौरा गुज़िश्ता से पेवस्ता है, ये गुज़िश्ता से पेवस्ता है और ये कि इसमें अब उसके फंक्शनल ये चीजों के ऊपर आगे बढ़ पहले वो चीजें जो थी वो थ्योरेटिकल थी, अब प्रैक्टिकल है। और उसमें कंपनी टू कंपनी एग्रीमेंट हो रहे हैं और इसमें बहुत सारी कंपनियां उनकी स्मॉल बिजनेसमैन आए, ये सिर्फ गवर्नमेंट का दौरा नहीं है, उसमें 100 बिजनेसमैन भी आए हैं और इसमें जो सेक्टर्स हैं उसमें एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और IT है और इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ये लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, माइन है, मिनरल है, तो ये सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी है। तो अब मुझे ये यकीन है कि इंशाल्लाह ये $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है इसका आगाज हो जाएगा। अच्छा, आर्मी चीफ से भी सऊदी वजीर सरमायाकारी ने मुलाकात की है। अच्छा, ये तो अहम शख्सियात से मुलाकातें वैसे ही बड़ी अच्छी साबित हो जाती हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि सऊदी अरब मुआशी इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मदद करना चाह रहा है या किसी किस्म का मददगार हो सकता है, ये सही इमेज है? जी बिल्कुल सही है। इसमें सऊदी अरब अगर आप ये बात करें कि पाकिस्तान की मदद करना चाहता है तो शायद ये बात इतनी दुरुस्त ना हो। असल बात ये है कि जब तक किसी दूसरी नेशन का आप में इंटरेस्ट ना हो, उनके इंटरेस्ट को आप कॉल ना करें, उस वक्त तक ये मदद वाली बातें आजकल की दुनिया में होती नहीं है। अच्छा। तो अब ये हमारी SIFC ने जिस तरीके से काम किया है और जिस तरीके से मेहनत करके और इन चीजों को काबिल अमल बनाया है, आप देखें इसमें 6.5% हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ आई है तो ऐसे ही तो नहीं आ गई ना, कोई तो उसके पीछे काम कर रहा है। इसी तरीके से हमारा जो टैक्स टू GDP भी बढ़ा, इसी तरीके से हमारी जो इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ऑलमोस्ट 0 हो गया, जो कि पहले $18 था। तो आखिर कोई तो इसके पीछे कुछ काम हो रहा है ना, वो जो काम हो रहा है उसी के असरात हमें अब नजर आ रहे हैं। 6.9% पे हमारी इन्फ्लेशन आ गई है 39% से, और डॉलर जो है वो पिछले 1.5 साल से उसी जगह पे कंटेन किया हुआ है, और एक्सपोर्ट हमारी 17% बढ़ी है। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि वी आर ऑल सेट टू प्रोग्रेस टू द न्यू अरीना, और ये कि वी आर ऑल सेट टू इनवाइट द न्यू इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज वेल। तो इंशाल्लाह अब सूरत हाल काफी बेहतर है और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसमें बड़ी तेजी से सूरत हाल जो इकोनॉमी की है वो बेहतर होने जा रही है। अच्छा, मियां जाहिद हुसैन साहब, बड़ी दुरुस्त बात आपने कही कि नेशनल लेवल पे जो चीज़ें होती हैं, जो मुआहदे होते हैं, वो रिश्तेदारियां नहीं निभाई जा सकती, वो नेशनल जो इंटरेस्ट है उसको देखा जाता है। बिल्कुल दुरुस्त बात। इसका मतलब है आपने जो अभी बात की कि आने वाले दिनों में महंगाई भी कम होगी, आवाम को रिलीफ भी मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा। आज जो देखें जो महंगाई कम हुई है 6.9%। आज अगर आप खुद सोचिए, अगर आप अपने घर का बजट बना रही होती, मैं अपने घर का बजट 39% इन्फ्लेशन में बना रहे होते हैं तो आज हम कितनी डिफिकल्टीज में होते। लेकिन उसके बरक्स अगर हम 6.9% इन्फ्लेशन के ऊपर अगर हम बना रहे हैं, उसमें डॉलर भी एक जगह पे कंटेन हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि अब हमें बजट बनाने में वो डिफिकल्टीज नहीं है जो आज से 1.5 साल पहले थी। तो सूरत हाल खासी बेहतर हुई है। फिर ये कि आप देखें इंटरनेशनली हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। IMF का पैकेज मिलने के बाद आज वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान अपनी जो मुआशी परेशानियां थी उनसे निकल चुका है, और अब हमारा जो GDP है वो उन्होंने कहा है कि 2.4 की बजाय 2.8 होने की तवक्को है। तो खैर 2.8 हो या 4.8 भी हो तो बहुत कम है। कम से कम आपका GDP जो है 6% अगर हो तो फिर इसका मतलब है कि आप सस्टेनेबल होते हैं।
तो सस्टेनेबल होने के लिए आपको मार्केट के रेट अभी मजीद 4-5% कम करने होंगे और बिजली की कीमत आपको 9 सेंट पे लानी होगी, जो कि इस वक्त कोई 15-16 सेंट पे है। और जैसा कि आर्मी चीफ के साथ जो मुलाकात हुई थी यहाँ पे बिजनेसमैन की, तो आर्मी चीफ ने ये कहा था कि हम बहुत जल्द इसके ऊपर काम हो रहा है और 9 सेंट पे ला रहे हैं। और आज आपने देखा भी होगा कि 5 IPPs के साथ गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट्स खत्म कर दिया और मजीद कुछ लोगों के साथ बातचीत चल रही है। तो ये बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनका मुझे जाती तौर पे हेल्प है और वो पाइपलाइन है, वो काम हो भी रहे हैं। हमने फेडरेशन FPCCI से भी इस मसले को उठाया और आपके सामने ये IPPs का मसला हमने फेडरेशन से जिस तरीके से टेकअप किया हुआ है और उसके नतीजे में अब आप देखेंगे बहुत जल्दी जी ठीक है। तो मार्कअप भी कम होगा। जाहिद हुसैन साहब, आप समझते हैं इसका तमाम तर जो क्रेडिट है वो नून लीग को जा रहा है? मैं समझता हूँ कि इसका तमाम क्रेडिट जो है वो हमें जा रहा है, बिजनेस कम्युनिटी को जा रहा है, कि जिन्होंने कठिन हालात में भी कठिन हालात में कारोबार किए, कठिन हालात में गुजारा किया, हमारे अवाम को इसका क्रेडिट जा रहा है, जिन्होंने इतनी मुश्किल बर्दाश्त की और उसके बावजूद उन्होंने मुल्क के साथ चले, मुल्क के साथ सस्टेन किया। और इसका ये जो क्रेडिट है ये हमारे अवाम को है, हमारी कम्युनिटी को है और फिर आखिर में जाके यकीनन गवर्नमेंट को भी है और SIFC को भी है कि जिस तरीके से हम वन विंडो की बात करते थे बड़े अरसे से, तो SIFC की शक्ल में एक वन विंडो ऑपरेशन हमें मिल गया है, जिसके नतीजे में जो काम 2-2, 4-4, 5-5 साल नहीं होते थे वो अब 2-3 हफ्तों में होने लग गए। तो उसकी वजह से ही आप ये देख लीजिए। तो ये तो नून लीग ने रिलीफ दिया ना, ये जो गवर्नमेंट है आपकी, इसने रिलीफ दिया ना आपको? जी बिल्कुल, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसने दिया। और मैं नून लीग का नाम लूंगा तो फिर बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी और वो समझेंगे कि मैं सियासी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं सियासी बात से कतई नजर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें शहबाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा रोल है। जिस तरीके से आपको याद होगा कि बात होती थी कि जी पाकिस्तान आज डिफॉल्ट कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, जी ये सूरत होती थी ना, तो वो उनको जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने प्रोएक्टिवली उस वक्त काम किया और मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, मैं समझता हूँ हमें उनको शहबाज शरीफ साहब को उनका ड्यू क्रेडिट देना चाहिए और उसमें हमें यानी खालिद से काम नहीं लेना। जी 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 जाहिद हुसैन साहब, आप क्योंकि बड़ी गहरी नजर रखते हैं सियासत पर भी और माहिर मुआशियात तो आप हैं, ये कौन से दौर की आप बात करें जब मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था? ये जो PDM का PDM गवर्नमेंट आई थी और हमारे इमरान खान साहब के खिलाफ जो करारदाद आई थी कि PDM ने टेक ओवर किया था और उसमें शहबाज शरीफ साहब उसके वज़ीर आज़म बने थे, तो उस दौर में आपके सामने ही है कि मुल्क उस वक्त 18 अरब डॉलर का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था और यही वजह है कि उसमें फिर हमारा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। और फिर हमारे शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से मेहनत की और जाके जिस तरह एंगेज किया IMF की MD को, हालांकि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे एंगेज नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने इस चीज की भी परवाह नहीं की, प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की और उनके साथ उन्होंने उनको एंगेज किया और वो प्रोग्राम उनसे लिया जो $3.1 बिलियन का स्टैंड बाई प्रोग्राम हमें मिला था और उससे हमारा इंटरनेशनल जो परसेप्शन था वो बेहतर हुआ। और अब उसके बाद आप देख लीजिए कि फिर केयरटेकर गवर्नमेंट आई, फिर उसके बाद अब दोबारा इनकी जो नून लीग गवर्नमेंट है तो ये चल रही है, तो इससे रफ्ता हम देख रहे हैं कि हालात बेहतरी की जानिब गामज़न। ठीक है, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और बिल्कुल आवाम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, आवाम उम्मीद पर ही तो जिंदा है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे हम मुल्क की मईशत के हवाले से और लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड ताहिर मसूद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तज्जियाकार हैं, इनको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। कर्नल साहब क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। कर्नल साहब, अभी जो सऊदी वज़ीर सरमायाकारी अपने वफ़द के हमरा आए हैं, दौरे पर हैं पाकिस्तान के, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं इनसे, लोग कह रहे हैं, तज्जियाकार कह रहे हैं। अभी हमारी बात हो रही थी मियां जाहिद हुसैन साहब से, तो उन्होंने भी बड़ी उम्मीद जाहिर की। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा रहेगा ये और पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और गुज़िश्ता कई महीनों से ये चीज़ें चल रही थी जो कि अब पाए तकमील की तरफ जा रही हैं। ये दौरा उन गुज़िश्ता से पैवस्ता है, तो कैसे देखते हैं आप आज के दौरे को इनके? देखिए, सऊदी अरब का इंटरेस्ट तो है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी में और पाकिस्तान की खुशहाली में, और बहुत बड़ा एक फैक्टर है बीइंग अ मुस्लिम कंट्री ब्रदर, और
न्यूक्लियर ओनली इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट। तो सऊदी अरब की तो शुरू से ही हमारे साथ बहुत रहा है, बरादराना ताल्लुकात रहे हैं और स्पेशली इन दी फॉर्म ऑफ ये जो फाइनेंसेस हैं, तो इसमें उन्होंने हमेशा आपकी बहुत हेल्प की सपोर्ट और किया। ऐसे मौके पे किए कि जब दुनिया से कहीं से कोई और एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, जैसे कि अब है। अब भी ये है कि हर तरफ से जब आपको तकरीबन समझ लें कि इनकार हो गया जिधर भी अच्छा। जाते हैं, जिधर भी, इंक्लूडिंग कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है चाइना है, तो वो भी थोड़ा बहुत वेरी हुआ है कि अभी कॉशियस हुआ है। तो ट्रस्ट लेवल ना, तो अभी ट्रस्ट लेवल ऑलमोस्ट समझें कि उसी तरह का सऊदी अरब का भी है। लेकिन चूंकि सऊदी अरब का एक हमारा एक बहुत ज्यादा जो है कनेक्शन है, सिंपली एक कनेक्शन ऑफ बेनिफिट नहीं है कि जो बाकी कंट्रीज के साथ है, एक जज़बाती लगाव है, यूं कह सकते हैं, मजहबी लगाव है, और हर लिहाज से पाकिस्तान को एज ए स्टेट सऊदी अरब जो है एक कदर की निगाह से देखता है। तो उसी सिलसिले में अभी जो गवर्नमेंट का जहां तक आ जाता है फैक्टर के, ये काफी अरसे से ये बहुत दफा ये ऐलान हो चुके हैं, आपने पहले भी देखे होंगे कि इतने बिलियन का हो गया, इतने बिलियन का हो गया। कर्नल साहब, हमेशा ये बात की जाती है कि सऊदी अरब बहुत पाकिस्तान का सपोर्टर रहा है और कर रहा है। 50s की अगर हम बात करें, थोड़ा हिस्ट्री की तरफ जाएं, तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने भी बड़ी हेल्प की है उस एरा में। जी, उस एरा में तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ सऊदी अरब की बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी था, इंक्लूडिंग जर्मनी जैसे कंट्री को भी आपने लोन दिया था। दुनिया की एयरलाइंस आपने खड़ी की, जो आज एमिरेट्स और ये वो जितनी भी बड़ी बड़ी एयरलाइन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान उस वक्त ऐसी पोजीशन में था। तो वो तो अनफॉर्चुनेटली उसके बाद से कोई हालात ऐसे डेवलप होते रहे कि अभी हम इस हालत में आ गए हैं कि लोग हमें कर्जा देने को तैयार नहीं है, मदद करना तो दूर की बात है। अपने काम है, ये हमारे अपने काम है। डैडी साहब, क्या कहेंगे आप? मतलब हम पाकिस्तान का एक नाम था 50s के एरा पे, आप देखें तो आप तो जानते हैं इस बार बड़ी जिस तेजी से तरक्की कर रहा था, और 1965 की जंग में पाकिस्तान की जो कारकर्दगी थी वो काबिल सताइश थी। और 1965 की जंग के बाद जब क्या कहते हैं ताशिद कॉन्फ्रेंस हुई, वो भी हम सबके सामने है। तो बात ये कि हम पे बहुत सारी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की एक रिजर्वेशन थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। और आप देख लें कि उस वक्त जो कुछ हो रहा था, डेनियल मार्की की किताब नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान अगर आप पढ़े तो आपको तमाम चीजें सामने आ जाएगी कि क्या क्या था, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियरली। हाँ, कि जर्मनी को भी पाकिस्तान ने उस वक्त मदद की, इवन कोरिया को मदद की, और भी ममालिक है जिनको पाकिस्तान ने माशी तौर पे मदद की। और पाकिस्तान में जो 60s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अयूब खान के दौर में आया, उस दौर में मकसद 10 साल अयूब खान के दौर में जो माशी तरक्की और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, वो पाकिस्तान में आज तक वो नहीं हो सका, नहीं देखा। हाँ, मैंने ये चीज देखी। अब एक बात हो रही थी कि डिफॉल्ट जी, देखिए अब ये राजनीति कुछ सालों से बड़ी चल रही है कि डिफॉल्ट हो जाएंगे, डिफॉल्ट है जी। जब 2018 में कोविड के बावजूद जब खान साहब की गवर्नमेंट आई, तो फौरन IMF का पैगाम आया कि 9.2 बिलियन डॉलर आप फौरी तौर पे जमा कराएं। आपकी जो पिछली हुकूमतों ने कर्जा लिया और इंस्टॉलमेंट और सूद की मद में, वरना आप डिफॉल्ट हो जाएंगे। 3 अरब डॉलर सऊदी अरब ने हमारी मदद की, जो सऊदी अरब हमेशा हमारी मदद करता है। 3 अरब डॉलर हमें UAE ने दी और बाकी चाइना ने दे के आप उस डिफॉल्ट की शमशीर से अलग हो गए। ठीक। अब बात ये कि जब आप ये देखिए कि वो दौर जब ये सर कह रहे थे मियां साहब कि PDM 1 की गवर्नमेंट थी तो बड़ी तेजी से हम आगे जा रहे थे। मैं बता रहा हूँ 18 अरब डॉलर की ये डेफिसिट बता रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है, हमें उस वक्त जब खान साहब की गवर्नमेंट गई 18 बिलियन डॉलर खजाने में छोड़ के गए थे, ठीक है, आज तक उसका ये नहीं पता चला कि वो पैसे गए कहाँ। खैर नहीं, छोड़े इसको। बात ये कि हमें इस मुल्क की तरक्की के लिए वो सरमायाकारी की जरूरत है जिसमें सरमायाकारी ना हो, लोगों को रोजगार मिले और लोग आगे बढ़े। वो है आपका सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, आपकी IT एक्सपोर्ट। जब बिल गेट चल के पाकिस्तान आए तो हमने उसका फायदा नहीं उठाया, ना उसको कैरी फॉरवर्ड किया। आप देखें कि एहसान इकबाल साहब के साथ मीटिंग हुई थी उनकी। नहीं,
एहसन इकबाल साहब से हुई नहीं हुई तो वो तो खान साहब के दौर में आए थे यहाँ पे। पहली बार जब नवाज शरीफ की सेकंड गवर्नमेंट जब सेकंड टाइम आई, उस वक्त 2 पाकिस्तानी आईटी एक्सपर्ट जो इनके दोस्त थे, उन्होंने बिल गेट को कहा कि आप जो माइक्रोसॉफ्ट यूनिवर्सिटी लगाना चाहते हैं, क्या ये इस रीजन में पाकिस्तान में भी आप लगा सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल, लेकिन हमें 2 चीजों की श्योरिटी चाहिए कि कॉपीराइट और पायरेसी। तो यहाँ है, मियाँ साहब ने तो मिलने से भी इनकार कर दिया था प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद फिर वो एहसन इकबाल, फिर एहसन इकबाल से बात, वो कहते हैं कि उनसे कहो मुझसे बात करें। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बिल गेट्स से बात की और उन्होंने इंडिया में जाके $35 मिलियन से यूनिवर्सिटी का क्याम हुआ। $100 मिलियन उन्होंने अनाउंस किया कि हर साल में ग्रांट दूंगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट 1 मिलियन इंडियन स्टूडेंट जो थे वो बैचेस वाइज सिलिकॉन वैली के ट्रेनिंग ली। As a result of that, today India is exporting $180 billion software. तो इसमें ना आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज जो है ह्यूमन, उसको आपने यूज करना है, जो मौका हमने को। अब दूसरी बात, बिल गेट चल के पाकिस्तान आए, लेकिन उसको भी सियासत की नजर कर दिया गया। तो भाई असल हमने अगर तरक्की करनी है, इस मुल्क में डैम्स बनाओ, काश्तकार को पानी दो, सस्ती बिजली फराम करो। अगर आपने यहाँ पे करना है तो आप अपने FBR के निजाम को ठीक करो, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस आप ठीक करो, ताकि वही, क्योंकि FBR इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके नेशनल बजट में FBR कंट्रीब्यूट 60% रेवेन्यू टू आवर नेशनल बजट। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि सियासी जो इन्फ्लुएंस है ना हर शोबे में, जो एक प्रेशर आ जाता है, इससे हमें हटना होगा, तभी बहुत सारी चीजों को हम वो कर सकेंगे। नेशनल इंटरेस्ट को देखना होगा। कर्नल साहब, आप तो जाहिर है आपका ताल्लुक भी जो आप खुद एक कर्नल रहे हैं, तो नेशनल इंटरेस्ट को तो हर लेवल पे देखना होगा, सिर्फ सियासत या मईशत के उसको नहीं, हर जगह मेरिट को सामने रखकर ही बात करनी होगी। जैसे कि हमारे अफवाज पाकिस्तान में हर चीज को मेरिट पे परखा जाता है और फिर आगे प्रोसीड किया जाता है। इससे पहले मैं थोड़ा सा जरा पिछली बात जरूर उस पे एक कमेंट दे दूंगा कि हम जो ये IMF का पैकेज और ये सारी चीजों पे डिफॉल्ट ना हो जाए, पता नहीं इतने इमोशनल एज ए नेशन क्यों हो जाते हैं, हमें क्या मिलता है? ओवरऑल देखें, जो भी जब भी कोई पैकेज आया, कहीं से कोई लोन आया, कहीं से कोई इमदाद आई, मुझे, आपको या एक कॉमन बंदे को क्या फर्क पड़ा? 1 रुपए का भी फायदा हम उसकी कीमत अदा कर रहे हैं भाई। टोटल फर्क ये पड़ा कि हमारे कंधों पे बोझ बढ़ गया, कर्जा ज्यादा हो गया, जो हमने या हमारी आने वाली नस्लों ने पे करना है। दैट्स ऑल। इसमें से एक पेनी भी हमारे ऊपर किसी के ऊपर खर्च नहीं हुई, ना आपकी एजुकेशन के ऊपर, ना आपकी इंडस्ट्री के ऊपर, ना हेल्थ पे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, चीज पे कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। और एज ए नेशन हम सारे बैठ के दुआएं भी मांग रहे होते हैं, उसको कह भी रहे होते हैं कि यार ये मुबारकबादें दे रहे होते हैं, हम लोग नहीं। IMF ने ये कर दिया तो पता नहीं हमें क्या हो जाएगा, कर्जा दे दिया, वाह वाह मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हम अक्सर करते हैं, ये बिल्कुल। जबकि हमें अफसोस करना चाहिए कि IMF ने हमें कर्जा दे दिया या किसी मुल्क ने हमें अफसोस करना चाहिए कि जी हमें अफसोस है कि उन्होंने दे दिया, कल को पे किसने करना है? ये वो मुल्क जो कि पहले कभी कर्ज दिया करता था, हेल्प आउट किया करता था, अब वो जो है वो मदद के लिए मुंह देख रहा है, स्पेशली लोन्स के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, उसे चलो एम्प्लॉयमेंट होगी, ये होगा, कोई इंडस्ट्री यहाँ पे लग गई, यूनिवर्सिटी बन गई। IT में IT एक आजकल तो सबसे फास्ट ग्रोइंग फील्ड IT है, और IT की एक्सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर तो इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतना टैलेंट है कि इंडिया में भी इतना टैलेंट नहीं है, बावजूद इसके कि उनकी गवर्नमेंट की सपोर्ट है, उनको प्रॉपर माहौल वो दिया जाता है, IT पार्क्स और पता नहीं क्या क्या, अगर उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दें तो कहीं से कहीं बात निकल जाती है। उसके बावजूद यहाँ पे IT पे इतना काम हो रहा है, फ्रीलांसर्स हैं और कंपनीज जितनी भी हैं। बिल्कुल सर, तो इंटरनेट ही स्लो कर दिया, उसका क्या आपका इंटरनेट स्लो कर दिया। आप इंटरनेट तो चलें दूर की बात है, पता नहीं आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है कि नहीं, डिस्करेज किया जा रहा है उल्टा। IT कंपनीज को डिस्करेज किया जा रहा है, उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जबकि अनाउंस ये किया जाता है कि इन पे कोई टैक्स नहीं है। सबसे ज्यादा इस वक्त टैक्स IT कंपनीज पे है, उनकी एक बंदे की सैलरी से 30% कटता है जी। तो आप IT को उल्टा डिस्करेज कर रहे हैं इस मामले में। तो मैं ये बस उस बात को थोड़ा सा करना चाह रहा था कि हम उस लोन को या उस पैकेज को इतना वेलकम करना है या सेलिब्रेट करने के बजाय उस पर अफसुर्दा होना चाहिए कि हमें कल को पे करना है। बिल्कुल, फैक्ट्स एंड फिगर जो चीजें हैं वो आनी चाहिए सामने। खुशी का मुकाम उनके लिए जिन्होंने वो खाने हैं।
تو وہی ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, وہی جو جنہوں نے انجوائے کرنا ہے, جنہوں نے انجوائے کرنا ہے, باہر پراپرٹیز بن جائیں گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تو دے آر ہیپی. تو ہمیں اتنی خوشی نہیں ہے اس بات کی. لبے لباب یہ ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ٹیلنٹ بہت زیادہ موجود ہے یہاں پر, لیکن اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا, اور جو ٹیلنٹ سامنے آتا ہے تو اس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اسے دبا کے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے. وقت ہو گیا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں فاروق ڈاڑی صاحب اور کرنل طاہر مسعود صاحب موجود ہیں. ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. تھوڑی سی سیاسی جو ماحول کی گرما گرمی ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. آئینی ترمیم کے حوالے سے کئی خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں, اور حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ایک بحث و مباحثے کا سلسلہ جاری ہے اس پر بھی ضرور بات کر لیتے ہیں. کرنل صاحب, بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ 25 اکتوبر تک آئینی ترمیم نہ ہی ضروری ہے اور نہ ہی مجبوری ہے. مطلب کیا مطلب اس کا, کیا حقائق کیا ہے, یہ معاملہ کیا ہے آئینی ترمیم اس کا؟ ویسے ایک سنگل ورڈ میں مطلب یہ کہ انگور کھٹے ہیں. اچھا, مطلب آپ نے بات ہی مکا دی اتنی. ابھی دیکھیں, ایک بندہ سے بلاول بھٹو زرداری جگہ جگہ جا کے لائرز کنونشن ارینج کر کے ایک شہر دوسرے شہر بھاگ, اتنا آپ نے ان کو جب سے ایکٹیولی وہ پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا انہوں نے سیاست کے اندر, کسی وقت بھی پوری اٹھا کے دیکھ لیں, اتنی دیر وہ کبھی بھی اسلام آباد میں نہیں رہے, اتنی دیر وہ کبھی بھی انگیج نہیں رہے سیاسی کریئر میں, جتنا انہوں نے آئینی ترمیم کے لیے کنونس کرنے میں لگایا لوگوں کو بھی, لائرز کو بھی, باقی ڈیلز بھی, اور ہر طریقے سے. تو اب یہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جی یکدم وہ اعلان کر دیں کہ جی نہ ضروری ہے نہ یہ ہے. اب یہ ہو گیا کہ یہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ چیف جسٹس والا چیپٹر تو ہو گیا کلوز. اچھا, تو جیسے ہی چیف جسٹس والا, اسی کے لیے تو ایک ڈیڈ لائن تھی نا کہ 25 اکتوبر تک ہم نے کرنی ہی کرنی ہے نا نہیں کیس, اور تو ڈیڈ لائن کی ضرورت کوئی نہیں تھی, ہو سکتی تھی آپ 26 27 28 نیکسٹ منتھ آئینی ترمیم کرنی ہے. اگر آپ سنسیئر ہیں کہ صرف آئینی ترمیم کرنی ہے اور پاکستان کے انٹرسٹ میں کرنی ہے, تو وہ تو فلوٹ کبھی بھی ہو سکتی تھی. اور ابھی گورنمنٹ کی تو آج کا لطیفہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا, جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کا تو کوئی مسودہ ہے ہی نہیں. جج نے پوچھا, جب جو کیس نہیں تھی نا چاروں ہائی کورٹس کے اندر, تو اس میں کہا جی ہے ہی نہیں, کوئی آئینی ترمیم کا مسودہ ہی کوئی نہیں. تو جب کہ یہ مسودہ ہر جگہ ڈسکس ہوتا رہا. تو اینی وے ابھی جو مین سوال تھا آپ کا جی کہ وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ضروری 25 سے, تو اس کو اس سے صاف ظاہر ہے کہ قاضی صاحب از گوئنگ, تو اور تو اس کا کوئی مقصد نہیں نکلتا. اچھا چلیں, ان شارٹ آپ نے اس کو سمرائز کر دیا ساری چیزوں کو, انگور کھٹے ہیں. ٹھیک ہے, وزیر اعظم صاحب نے 5 آئی پی پیز کو منسوخی کی, معاہدوں کی منسوخی کی خوشخبری سنائی ہے عوام کو. کتنا ریلیف ملے گا, کیا ہونے جا رہا ہے, کچھ ملے گا ریلیف؟ اب مجھ سے جی ڈاڑی صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیں, یہ وہ آئی پی پیز تھے جنہوں نے پچھلے 4 سال سے ایک یونٹ بجلی نہیں بنائی, اور باقاعدہ وہ عوام پہ بوجھ بنتے رہے اور باقاعدہ پیسے لیتے رہے. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کا پورا آڈٹ کریں. جب ان تمام آئی پی پیز کی ٹوٹل کیپیسٹی 48% اینڈ دے آر چارجنگ 125%, تو یہ کاسٹ ہم اور آپ پے کر رہے ہیں. تو پہلے تو اس کا آڈٹ کریں اوپر سے نیچے تک. یہ 4 سے کام نہیں چلے گا, آپ نے پورا آڈٹ کرنا ہوگا. بلکہ میں تو کہوں گا اس کو شٹ ڈاؤن کریں, اور یہ جو سولر سسٹم پہ قوم اپنے آپ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہی ہے, اس کو آپ انکریج کریں اور اس پہ کنورٹ کریں. تو یہ آئی پی پیز نے ہمارا بہت خون چوسا ہے عوام کا. اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ کون جاتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, تو یہ چیزیں اب دیکھیں, جیسے کنر صاحب آئینی ترمیم پہ آپ اور کنر صاحب بات کر رہے ہیں, میں ایک چیز کہوں گا کہ جب بھی کوئی آئینی مسودہ یا آئینی ترمیم یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, تو اس پہ نیشنل اسمبلی میں ہفتوں مہینوں تک اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, ڈیٹیل میں ڈیبیٹ ہوتی ہے, اور ہر کوئی اپنا موقف پیش کرتا ہے. ہم نے تو یہاں دیکھا وزیر قانون کہتا ہے کہ مجھے بھی مسودہ مل گیا. ارے بھائی, تمہیں مل گیا, بنانا تو تم نے تھا, یہ آیا کہاں سے؟
किसने ये मुसविदा तैयार किया? यानी लोगों को पता ही नहीं है, अंधी तकलीद कर रहे हैं और हिमायत कर रहे हैं। तो भाई खुदा के वास्ते आप उस मुसविदे को पढ़ो तो सही, इसमें है क्या। लेकिन डैडी साहब, मुसविदे को पढ़ने के लिए मुसविदे का होना भी तो जरूरी है। अब ये तो बड़ी मजे का खेज बात है, और ये कोई चीज एक बड़ी exist काबिल करेगी। अफसोस बात है, और बड़ा अफसोस मुझे उन सेनेटर्स पे, उन नेशनल असेंबली के मेंबर्स पे होता है जो बगैर पढ़े मुसव्वदे को देखे बगैर अंधी तकलीद कर रहे हैं। क्या हम पाकिस्तानियों को क्या कोई जानवर भेड़ बकरियां समझा हुआ? क्या हमको इतना नाअहल समझा हुआ? सारी कौम देख रही है, लेकिन इनको क्या है, जब 17 सीटों की जगह 170 सीटें हो जाती है तो यहाँ कोई वो नहीं है। ठीक है। मकसद बात ये कि जहाँ पे इंसाफ नहीं होगा, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जहाँ पे आइन की पासदारी नहीं होगी, जहाँ पे आइन पे अमल दरामद नहीं होगा, जहाँ कानून और आइन की रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो वहाँ ये चीजें तो ये समझते कि हमारे घर की लौंडी है। ठीक है, वक्त अब बिल्कुल मुख्तसर रह गया। कर्नल ताहिर मसूद साहब से भी बात कर लेते हैं। कर्नल साहब, आप कैसे देखते हैं, कोई प्रेडिक्शन आप करना चाहें, कुछ कहना चाहें आने वाले वक्त के लिए, आवाम के कुछ हौसला अफजाई के लिए कर दें, कह दें कि कुछ बेहतर होने जा रहा है? देखिए, अभी ऑलमोस्ट जो है ना, हम हर दफा जब सोचते हैं कि एक पीक आ गई है, इसके बाद जो है ना बिल्कुल बॉटम में आ गए, इसके बाद राइज है हमारा, तो उस वक्त एक फर्दर हम स्टेप ले लेते हैं किसी न किसी लेवल पे, कि फिर और ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। लेकिन फ्रैंकली मैं ये समझता हूँ कि इससे ज्यादा हम और गिरना मुश्किल है, वर्स्ट हो नहीं सकते, इससे वर्स्ट हो नहीं सकता। अच्छा, तो अभी जो है वी हैव टू कम अप, और आई थिंक कि जी फोरसीएबल फ्यूचर में बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला हालात रिवाइव होंगे, वापस पावर लोगों के पास आएगी, जैसे लोगों के पास आएंगी तो चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। बाकी ये बहुत ही माइनर चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो पर्सनल इंटरेस्ट में लोग करते हैं, उनको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये मेरिट वेरिट हर चीज एडजस्ट हो जाएगी। ये जितने भी हैं ना, ये अभी बदमाश बने हुए हैं सारे के सारे, इनका पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। जो अपने आप को बहुत तरुण खान समझते हैं कि हम बहुत मैंडेटरी हैं इसके लिए और हमने पता नहीं क्या कर देना है, ये सब गायब हो जाएंगे। तो एक बस टर्न ऑफ द इवेंट होना है एक दिन में, और ये सब के सब पता नहीं चलेगा। और इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि ये सब सेटल्ड हो जाएगा, ये सब सेटल हो जाएगा विद इन दिस ईयर हो जाएगा। आई एम वेरी होपफुल। अच्छा, चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बस मुख्तसरन बता दीजिए, ये तो पाकिस्तान के हालात में हम बात कर रहे थे, जो खिते के हालात हैं इस वक्त, क्योंकि इंटरनेशनली भी आपका बड़ा रिसर्च है और बहुत गहरी नज़र होती है आपकी, तो उसके बारे में क्या आप सोच रहे हैं? अब SCO का भी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो कुछ प्रेशर डेवलप हो सकेगा फ़लस्तीन और इसराइल और लेबनान के जो मामला चल रहे हैं? देखिए, SCO से तो फ़लस्तीन और लेबनान के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई मेजर प्रेशर डेवलप होगा। एक ठीक है, एक छोटी छोटी कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो एक चीज़ से मैटर करती है, ये भी मैटर करती है। ये एक बड़ी कॉस्मेटिक्स ही एक होगी डेफिनेटली, जाहिर है इसमें कोई कंक्रीट स्टेप तो लेने नहीं लगा, किसी कंट्री ने ऐलान कर देना कि हमने कल को फलां का उनका साथ देना, ये करना वो करना, इस हद तक तो कोई भी नहीं जाएगा। तो ये कॉस्मेटिक्स का एक इफेक्ट होता है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है, और इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छी चीज़ है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उधर जो हालात हैं काफ़ी गड़बड़ हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जो एक उनका इमेज टार्निश हुआ है इजराइलीज का, ज्यूज का, जो मुजालिम लोगों के सामने आए, तो और फिर एक वो जो बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अब वो चूंकि अपनी बदमाशी में है और अपनी मौज मस्ती में है, जो नेतन्याहू है या जो भी उसके हवारी हैं, और बैक पे तो लोगों के सामने आ गई हैं बहुत सारी लोगों के सामने आ गई हैं, तो अब जो चीजें ना उतनी स्मूथ सेलिंग उनके लिए है नहीं। ठीक है, डैडी साहब वन लाइनर आपसे भी लेना चाहूंगी। देखिए, जल्दी बात ये कि हमें ये हमारे इस वक्त जरूरत ये कि मुस्लिम उम्मा में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो मुस्लिम उम्मा को जगाए उठाए, और जो जिनको बंद किया हुआ जिस शेर को, वो इसीलिए कहा जाता है मुबैना तौर पे कि उसको इसीलिए अंदर रखा गया इंटरनेशनल एड एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर से, ये बाहर निकल के मुस्लिम उम्मा को जगाना शुरू ना करे और इसराइल के लिए मुसीबतें खड़ी ना करे। तो ये सबसे तशवीशनाक बात है कि अगर ये निकल गया, क्योंकि ही मैटर्स, अभी इस वक्त कोई प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। डैडी साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब ताहिर मसूद साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया, मैं जाहिद हुसैन साहब आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, बात सिर्फ मुल्क की मफाद पर होनी चाहिए, बस इसके बाद
کچھ بھی نہیں. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ نے کے بعد.